Honorable Prime Minister Modi, our distinguished guests from around the world, esteemed chief ministers, envoys of various nations, ladies and gentlemen. I watched Christopher Nolan's The Odyssey with my family last week in its full IMAX glory. As I watched the epic unfold on screen, with Matt Damon's Odysseus lurching from one crisis to the next, escaping death narrowly on occasion after occasion, it dawned on me that Homer's 2,500-year-old tale is something of a parable for our times today. When we look around the world, at least if we believe the headlines, we're lurching from one crisis to the next. We have 2 ongoing wars, an energy crisis, disruption of shipping routes, trade wars that are unsettling decade-old certainties, use of nuclear weapons being discussed in serious rooms, an AI revolution that is sucking in more capital than has ever been deployed behind any technology ever, and a crisis in leadership in ending wars, restoring normalcy, and inspiring trust. And all of this at once. In many ways, like in the kingdom of Ithaca, the longing for leadership that is a source of stability is palpable in most parts of the world. But here in India, ladies and gentlemen, we are fortunate to be among a leader who has been a source of stability for the nation and the region for more than 12 years now. Prime Minister Modi is now serving what is the longest term an elected Indian Prime Minister has ever had. He is also the longest-serving democratically elected head of government among both the G7 and the G20 nations. Stable, long-serving leaders who are able to repeatedly win the trust of their voters do something for a nation. They infuse a nation's soul with a sense of unity, security, and confidence. That no matter what the challenge is, we will deal with it together. And we are in good hands. That we shall overcome. That sense of security and confidence then turns into magical things, like stable, long-term economic growth, which has made India retain the distinction of being the fastest-growing large economy in the world for the better part of a decade now. Like world-class digital public infrastructure deployed at scale that is changing lives in countless ways. Like the rapid strides in the ease of doing business and quality of life. Like a manufacturing boom that has meant that 1 in every 4 phones sold all around the world is now made in India. Like a semiconductor and data center boom that is attracting hundreds of billions of dollars in investments. And that magic is felt the most in the audacious dreams that India's young entrepreneurs are chasing. Let's just look at the last 30 days alone. An Indian startup from Hyderabad successfully sent a rocket into space. Another from Bengaluru built a full-flow stage combustion rocket engine, a technology so complex that if successful, it would make the company only the second after Elon Musk's SpaceX to achieve it. Then there's an 8-person team sitting in Bhubaneswar that showed the world something equally remarkable, that you can develop cutting-edge cancer drugs in a simulated space environment. Another Bengaluru startup did something that would have sounded unthinkable not long ago. It switched on India's first privately built tokamak, an extraordinary apple-shaped chamber where superheated plasma is held in place by powerful magnetic fields, with the ultimate ambition of producing energy through nuclear fusion. All of this, a nation's energy, its self-belief, the dreams of its youth, the audacity of its entrepreneurs,
the resilience of its farmers, and indeed its destiny, all essentially flow from stable, long-term leadership. Our theme at this year's Economic Times World Leaders Forum is Shared Futures, secure, intelligent, resilient. More than 40 global leaders have flown down from around the world to join us between today and tomorrow, to exchange ideas, explore partnerships, and listen to each other, and most importantly, to listen to Prime Minister Modi. Prime Minister, it is our honor to have you among us. We are grateful for your leadership. You have navigated the country through many challenges with a steady hand. You have ensured energy security amid a tumultuous external environment. You have protected more than 1 billion people from a devastating pandemic. They say the only certainties in life are death and taxes. I think at this point, we can be certain that yet another crisis is only just around the corner. We can also be certain that with Modi ji's leadership at the helm and all of our efforts, there is no challenge, no crisis, and no adversary that we cannot defeat. Ladies and gentlemen, it is my great privilege to invite the leader who has done more than anyone to place ambition, resilience, innovation, and entrepreneurship at the heart of our national conversation. Please join me in welcoming to the stage the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. वर्ल्ड लीडर्स फोरम का ये प्रतिष्ठित मंच बिजनेसेस और इंडस्ट्री की दुनिया के सभी जाने माने दिग्गज, पॉलिसी मेकर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सबके बीच आकर के खुश होना बहुत स्वाभाविक भी है। इस साल समिट का फोकस शेयर्ड फ्यूचर पर है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है। G20 की अध्यक्षता में इसलिए ही भारत का मंत्र रहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। शेयर्ड फ्यूचर की ये भावना और इसके साथ जुड़ा दायित्व बोध 21वीं सदी के इस विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान देता है। साथियों, दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों।
रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। इतना ही नहीं, अगर आने वाले दिनों की चर्चा करें तो आईएमएफ का फोरकास्ट है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा और भारत निरंतर वो कदम उठा रहा है जो उसके विकास को गति दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी पिछले हफ्ते ही 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्त शक्तियों की बात की है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी समेत मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। पिछली बार जब मैं इसी मंच के माध्यम से आपसे जुड़ा था तब भी मैंने कहा था कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है। साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को पीएलपी के बारे में पता होगा। कोई है जिसको पीएलपी के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है, पीएलआई। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। साथियों, ये दोनों टर्म भारत के 2 अलग अलग टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। आजकल एक्सप्लेनर का जमाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथियों, आज की युवा पीढ़ी को यह सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई कंपनी
तय लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय उसे खुद ही नष्ट कर देती थी। साथियों, आज जो लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। इन मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए। आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था। इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। साथियों, हर रिफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले आपके सोचने के तरीके, आपका मानसिक किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के रिफॉर्म से ही होती है। जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, ये आंकड़े सिर्फ एक स्कीम के हैं। आप सोचिए, पहले का लाइसेंस राज वाली सरकार का पनिशमेंट मॉडल जहां बेरोजगारी बढ़ाता था, वहीं आज का हमारा इंसेंटिव मॉडल लाखों नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है। साथियों, आज भारत में ये तेज विकास, ये तेज रिफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारत में
और जिसका अभी सत्यन ने उल्लेख किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। पहले देश में रिफॉर्म्स की बात करने वाले घोषणा तो कर देते थे, बाद में भूल जाते थे, लेकिन हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोड मैप बनाया। इस रोड मैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं। पहले रेगुलेशंस की अप्रोच थी प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यानी जब तक सरकार इजाजत न दे तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। हम इस अप्रोच को बदलकर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड की तरफ ले जा रहे हैं, यानी जो काम कानून से स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है उसके लिए हर कदम पर परमिशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी है। सरकार और नागरिक के रिश्ते का आधार सस्पिशन नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए। साथियों, यही सोच आपको जन विश्वास बिल में भी दिखाई देती है। मैं जानता हूं हर प्रोसीजरल गलती को क्रिमिनल ऑफेंस मान लेना ठीक नहीं है, इसलिए अनेक ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। कई मामलों में जेल की जगह केवल आर्थिक पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट और एंटरप्राइज के रिश्ते में हम इसी रिफॉर्म माइंडसेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्षों में 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस हटाए गए, 40,000, 1,500 से ज्यादा, 1,500, 1,500 से ज्यादा पुराने और बेकार हो चुके कानून हमने खत्म किए। और जब इन सारे रिफॉर्म्स को एक साथ देखते हैं तो अंदाज होता है हमारी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के कंधों से कितना बड़ा बोझ कम हुआ है। साथियों, गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इस प्रक्रिया, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी संसद के मानसून सत्र के ही इसी सत्र में हमने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पारित किया है, और वो भी तब जब विपक्ष ने संसद में लगातार गतिरोध बनाया हुआ था। हमने देश की सेवा करने का काम रुकने नहीं दिया। अब इस कानून ने 19वीं सदी के अंग्रेजी कानून को रिप्लेस किया है। अब बैंकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स को स्वीकार्यता को कानूनी मान्यता दी गई है। इससे कानूनी उलझनें कम होगी, सिस्टम में पारदर्शिता होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथियों, गवर्नेंस में रिफॉर्म का एक मतलब ये भी है कि सिस्टम ऐसे बने जिसमें एक एक मानव जीवन और उसके समय के प्रति संवेदनशीलता हो। हम रेलवे का उदाहरण देता हूं। हमारी रेलवे में भी इसी अप्रोच के साथ काम हुआ है। आज 6,500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है।
10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। हमने रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज बनाने की गति भी कई गुना बढ़ा दी और इसी का नतीजा है कि 2014 के पहले के मुकाबले ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में 90% तक की कमी आई है। 90%। 12 साल पहले जहां एक साल में करीब 150 रेल दुर्घटनाएं होती थी, वहीं अब इनकी संख्या घटकर 15-20 रह गई है और हम इसे और कम से कम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। साथियों, रेलवे में स्वच्छता भी गवर्नेंस रिफॉर्म का एक बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब रेल पटरियों पर गंदगी और ह्यूमन वेस्ट एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। 2014 पहले हमारी ट्रेनों में जहां लगभग 12,000 बायो टॉयलेट लगाए गए थे, वहीं 2014 के बाद ट्रेनों में 3,60,000 से ज्यादा बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। यानी 97% से ज्यादा बायो टॉयलेट पिछले 12 वर्षों में लगे हैं। ये बदलाव सिर्फ सफाई का नहीं, यात्रियों की गरिमा, स्वच्छता और आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। ये करोड़ों यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का अभियान भी है। साथियों, गवर्नेंस की क्वालिटी का एक और पैमाना, और वो पैमाना है समय। जो प्रोजेक्ट शुरू हो वो समय पर पूरा हो और जो सर्विस लोगों को मिले वो भी समय की कसौटी पर खरी उतरे। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल सिस्टम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल रही है। ये हमारे देश में पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा यात्री इसमें ट्रैवल कर चुके हैं और इसका एक और अहम फैक्टर है जिसकी चर्चा नहीं होती है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की पंक्चुअलिटी 99.9% है, वरना हम तो हर चीज में कह रहे डिलेट होते थे, कहते थे ये तो इंडियन टाइम है। वक्त बदला है। ये मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए बताता हूं कि हमें अंदाज आए कि कितने बड़े व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसी तरह दिल्ली मेट्रो की पंक्चुअलिटी 99.9% है और ये पंक्चुअलिटी न्यूयॉर्क, हांगकांग और पेरिस जैसे शहरों की मेट्रो से करीब करीब बराबर हो चुकी है। ये सिर्फ
समय पर चलती हुई मेट्रो और नमो रैपिड रेल की कहानी नहीं है। ये समय के साथ बदलते हुए भारत की पहचान है। मैं जानता हूं कि अभी भी, और मैं कोई इतने से संतोष मान करके बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अभी भी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक शुरुआत तो हुई है और ये शुरुआत सराहनीय है। साथियों, हमारे रिफॉर्म्स रोडमैप का एक और बड़ा आयाम है पॉलिसी लेवल पर होने वाले रिफॉर्म्स। आज हम ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो प्रो पीपल हो, प्रो ग्रोथ हो, प्रो डेवलपमेंट हो। पॉलिसीज देश और देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, न कि पॉलिसीज बनाकर देश को उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहां देश का नक्शा बनाना भी गैरकानूनी, अगर मैप बनाए तो गैरकानूनी था। आप जेल चले जाएं। बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप की हत्या हो सकती थी, कितने आइडियाज इंप्लीमेंट होने से वंचित रह सकते थे। हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमने जियो स्पेशियल डेटा का डीरेगुलेशन किया और आज जियो स्पेशियल डेटा कितने ही स्टार्टअप्स का आधार बन रहा है। साथियों, आज आप लगातार ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, डिलीवरी में, शूटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब संभव ही नहीं होता अगर सरकार ने इससे जुड़े नियमों में रिफॉर्म नहीं किए होते। पहले देश में ड्रोन फ्लाइंग पूरी तरह नियमों में, बंधनों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे बंधनों से आजाद किया और आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, पहले बॉर्डर एरियाज को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसलिए आज बॉर्डर एरियाज में रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24-25 में ही बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई। साथियों, एक उदाहरण न्यूक्लियर रिफॉर्म्स का भी है। एक ऐसे समय में जब विकास पूरी तरह से एनर्जी डिपेंडेंट है, बंदिशों और प्रतिबंधों के कारण देश अपने न्यूक्लियर पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हमने शांति बिल के जरिए इसमें भी बड़ा रिफॉर्म किया है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह हमने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर में भी किया।
200 ईयर के पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी उसे बदलकर हमने 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मर्ज करके 7 फैक्ट्रीज बना दी और इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है और 2014 की तुलना में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ा है। और इसलिए कई बार रिफॉर्म्स हमारे जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है? आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं वो सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट्स सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में पढ़ती है तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं और वो पैसा कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बिटिया क्यूआर ही शेयर कर देती है कि पापा माँ मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसी शॉपिंग अपने घर बैठे बैठे करवा देते हैं। ये चीजें रिमार्केबल है, लेकिन अब ये कोई भारत के लोगों को कम से कम हैरानी नहीं होती। बाहर के लोग आते हैं उनको आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसा होता है? भारत के लोगों का रूटीन हो गया है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थी? साथियों, भारत ने बीते 10-12 सालों में ईज ऑफ लिविंग से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है। साथियों, आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में है। हम सस्ते और अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। अभी सत्य ने उसका बड़ा वर्णन किया। भारत दुनिया के फास्टेस्ट 5G रोल आउट करने वाले देशों में से एक है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर ई-केवाईसी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि फॉर्म में मैक्सिमम जानकारी पहले से भरी जाती है। आप ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, कुछ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं और सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। पहले जो रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वो भी कुछ ही दिनों में आ जाता है। साथियों, आज ई संजीवनी की मदद से, शायद इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है, ई संजीवनी की मदद से गांव के दूर दराज के लोग भी कहीं से भी डॉक्टर के साथ सीधी अपनी चर्चा करके अपने उपचार का रास्ता लेते हैं। और इससे जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था,
आज डॉक्टर उनके घर पर, उनकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब तक ये आंकड़ा भी आपको जरूर आश्चर्य करेगा, यानी भारत ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से एडप्ट किया है, सामान्य मानवी के जीवन को कैसे सरल किया है। अब तक ई संजीवनी के तहत करीब करीब 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। साथियों, आज भारत में ट्रैवल एक्सपीरियंस बदल रहा है। भारत के नागरिकों की यात्राएं पूरी तरह बदल गई है। यहां इस हॉल में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जिसने एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का इस्तेमाल न किया हो। ऐसे ही आजकल बहुत सारा काम सीमलेस तरीके से हो रहा है। हाईवे पर फास्टैग चल रहे हैं ताकि आप बिना रुके टोल देकर आगे बढ़ सकें। ईज ऑफ लिविंग का सही अर्थ यही है। समय की बचत हो रही है, जीवन आसान हो रहा है और करोड़ों लोग अपनी प्रगति पर फोकस कर पा रहे हैं। साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कोई दूसरा अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन परिवारों को दिए हैं ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए, ताकि उनकी छत पर सोलर प्लांट लगाकर सोलर पावर पैदा की जा सके। अब ये परिवार एक्स्ट्रा बिजली को बिजली ग्रिड में बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। खुद का बिजली बिल तो जीरो हुआ, कमाई भी होने लगी। इस योजना से लोगों के सपनों को भी विस्तार मिल रहा है। बिजली बिल कम हुआ है तो अब घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी जैसे लोग चीजें खरीद करके रखने लगे हैं। अब ये डर नहीं होता कि बिजली कटौती की वजह से दूध फट जाएगा। अब चिंता नहीं रहती है। अब स्कूल जाने वाले बच्चे रात भर चैन से सो पाते हैं। मैं फिर कहता हूं, इलेक्शन हो या न हो, लेकिन ये सूर्यघर और उसकी रोशनी बनी रहेगी। इस प्लांट का फायदा सालों तक देश के परिवारों को होता रहे। साथियों, आने वाले समय में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और विस्तार होगा। देश के यूथ के लिए, नारी शक्ति के लिए, फार्मर्स के लिए, गरीब और मिडिल क्लास के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस
और अधिक गति से आगे बढ़ने वाली है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे और मेरे लिए भारत का फ्यूचर अगर सुनिश्चित हो गया है ना, तो दुनिया के फ्यूचर में भी स्थिरता लाने का बहुत बड़ा काम इसी धरती से होने वाला है। इस आत्मविश्वास के साथ भारत जितना स्टेबल होगा, भारत का फ्यूचर जितना सुरक्षित होगा, विश्व को सुरक्षितता का एहसास देने की ताकत यहीं से पैदा होने वाली है। इस सामर्थ्य के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स की पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम। Let him talk. Thank you, Honorable Prime Minister, for taking us through the breadth of reforms and changes that are propelling India's growth story. It's been really an honor to have you here at the Economic World Leaders Forum 2026. Ladies and gentlemen, a resounding round of applause, please. Do not attempt to leave the room. Do not move to